Jai Hind, Jai Bharat to everyone. Students, I hope you all are fit, fine, and safe at home. Welcome to our online education. Myself, Sengundar Sulakshna, and I will be teaching you SPCC. So, students, today we are here to see Standard 11th SPCC, chapter number 2, effective way of writing letter. Okay, so in this portion we are going to see from part 1 chapter number 2. You know that we have finished the previous chapter, so today we are going to start up with a new chapter. So today we are here to see the part 1 of the chapter number 2. So let us move on with a short introduction of the portion that what we are going to see in the chapter number 2. So if you are seeing the effective way of writing the letter in this portion, or letter writing, effective ways of letter writing, in this we are going to see what is letter writing. According to the portion, you must be knowing that what is letter writing, but here we are going to see the letter writing the proper way, types of letter writing, formal and informal letter writing, and informal letter writing, what is business letter writing, what is the way of writing the business letter, in which effective way it can be written up, and what are the styles are used to write the business letter, that we are going to see up in a very detailed manner in this chapter. So as you all know, this can give you a good portion in the future, because this is a great knowledge regarding the business letter and the portion of letter writing. So now, without wasting the time, let us move on with the line to line explanation of the textbook from the PDF in the further video. So students, now let us move on with the today's portion. So as I said, today we are going to see chapter number 2, effective letter writing and its various style. So in this portion, as I said, what we are going to learn in this chapter, first is introduction, history of letter writing, characteristic of letter writing, types of letter writing. As I said, see, formal letter writing and informal, business and official, and in that we are just going to see the business letter, importance of business letter, effectiveness of business letter, characteristic of business letter, and style of business letter in a very detailed manner. So let us move on with the introduction. As usual, I am going to read it out, listen it out carefully, then we will discuss about it in a very detailed manner. In the present age of internet, effective communication skill plays a vital role in expanding business, individual and professional success. Modern method and means of communication have almost demonized the boundaries of place and time. Different classes in the society look for various means of communication to stay connected constantly with one another, and have accepted various means of communication. Modern method of communications are speedy, effective, economical and simpler, so they are widely accepted एंड पॉपुलर. सो प्रेजेंट एज की अगर हम बात करते तो इंटरनेट का टाइम है, ठीक है. इफेक्टिव कम्युनिकेशन का स्किल यहाँ पे बहुत ही वाइटली प्ले करता है. जैसे फीडबैक, चैप्टर नंबर 1 में हमने फीडबैक का दिया था. जब हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते तो फीडबैक कहीं ना कहीं कॉन्स्टेंटली मिलना चाहिए. बट जब हम लेटर्स वगैरह, रेदर दैन दैट हम जब राइटिंग में नोटिस वगैरह सर्कुलर करते थे, तब इंस्टेंट फीडबैक का पॉसिबिलिटीज़ नहीं था. बट अभी इंटरनेट है, व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया से कहीं ना कहीं एक बून यानी वरदान की तरह भी देखे जाते, क्योंकि वाइटली हमारे बिजनेस को बड़ा करने में, एक इंडिविजुअल को अपने कोई स्कोप या आइडियाज़ को पब्लिश करने में, या प्रोफेशनली सक्सेस लेने में, ये सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं जो है कम्युनिकेशन स्किल इफेक्टिव होना नेसेसरी है. और कम्युनिकेशन स्किल यानी बात करने का तरीका, किसी के साथ करस्पॉन्डेंस करने का तरीका, तो इसके लिए बहुत सारी मॉडर्न मेथड्स, जैसे मैंने बोला व्हाट्सएप ये वो, तो मॉडर्न मेथड्स भी यूज़ किए जाते और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस भी ऑलमोस्ट देखे जाते, जिससे जगह, समय, सारी चीज़ें गायब हो रही है. जैसे मैं यहाँ बैठे बैठे इंडिया के कोई कॉर्नर पे कभी भी किसी के साथ कांटेक्ट कर सकती हूँ, कोई भी टाइम पे कांटेक्ट कर सकती हूँ. रात को 2 बजे मुझे लगता है अर्जेंसी है, मुझे अब भी किसी को इन्फॉर्म करना है,
जैसे कि एशियंट टाइम पे, हिस्ट्री पे अगर आप देखो, कुछ इमरजेंसी है, मेडिकल इशू है, तो लेटर लिखना पड़ता था, वो लेटर पहुंचे तब तक तो यहाँ पे जो इंसान है उसकी वर्स्ट हालत हो जाती थी। तो अब ऐसा नहीं, आप डायरेक्ट एक कॉल करो और डायरेक्ट एक मैसेज कर दो, तो उससे भी हर चीज़ यानी टाइम, प्लेस, ये सारी चीज़ें गायब हो रही है। इवन रेदर देन दैट डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल, अगर सोसाइटी में देखो तो अलग अलग क्लास ऑफ पीपल देखे जाते हैं, वो भी कॉन्स्टेंटली ये ध्यान देते हैं कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कैसा यूज़ किया जाए जिससे कॉन्स्टेंट किसी के साथ जो है कॉन्टैक्ट बना रहे, किसी दूसरे इंसान के साथ कॉन्टैक्ट बना रहे। इवन हमने बहुत सारी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को एक्सेप्ट भी किया है। मॉडर्न मेथड ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं, ये बहुत ही स्पीडी है। जैसे व्हाट्सएप की हमने बात की, आपने मुझे कभी भी कोई डाउट के लिए मैसेज किया, कॉन्स्टेंटली तुरंत 1 मिनट या 1 सेकेंड के अंदर, विद इन 5 मिनट्स आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। तो स्पीडी है, इफेक्टिव है, इकोनॉमिकल भी है, ठीक है, इकोनॉमिकल इन द सेंस इतना ज़्यादा खर्चा करने वाला भी नहीं है, सिंपलर भी है, और वाइडली कहीं ना कहीं लोगों के थ्रू एक्सेप्ट भी कर दिया गया और पॉपुलर भी हो चुका है। सो कीपिंग इन माइंड a further portion, I'm going to read it, listen it out. Keeping in mind the attitude, nature, training, mental makeup and circumstances of people of India, and we evaluate the method of communication present time, we observe that people of our country in the recent age largely rarely on letter writing for business and official matter. Of course, the form of letter writing has changed, but its importance has not डिक्रीज। सो दिमाग में रखते हुए अभी के लोगों का एटीट्यूड, ठीक है, कैसे सोचना है, उनकी नेचर कैसा बदल गया, उनको ट्रेनिंग कैसे, मेंटली वो कैसे अपने आप को उन्होंने डेवलप कर दिया, ये सारी सर्कमस्टेंसेस को दिमाग में रखते हुए, जैसे 10 साल पहले आपको कोई भी चीज़ करना हो ऐसा ऐसे आपको लेटर लिखना पड़ता था, बट अब ऐसा नहीं है, अब लोगों ने मेंटली मेकअप कर लिया है, अपने आप को डेवलप कर दिया। तो ये सारी सर्कमस्टेंसेस को अगर हम इंडिया के अंदर से देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि मेथड ऑफ कम्युनिकेशन प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करते तो हमारी कंट्री के अंदर रिसेंटली हम ये बोल सकते हैं, एक बड़े से रिसेंट एज में, यानी अभी के टाइम पीरियड में बहुत सारे लोग जो है लेटर राइटिंग खुद लिखने के लिए तो ऑब्वियसली नहीं बैठते। इतना तो चीज़ें चेंज हो गया। ऑफिशियल मैटर हो कि बिजनेस हो, लेटर राइटिंग पे रिलाई यानी भरोसा करते, हमें रिटर्न लेटर राइटिंग होना चाहिए, बट हम कैसे ईमेल करते हैं, ठीक है, आजकल ईमेल हो गया, लिखने वाला पोर्शन तो गायब ही हो गया। सो ऑफकोर्स हम ये बोल सकते हैं कि फॉर्म ऑफ लेटर राइटिंग थोड़ा चेंज हो गया, ठीक है। पहले जिस तरीके से लेटर राइटिंग देखा जाता था वैसा अभी है नहीं, अभी थोड़ा चेंजेस देखा जाता है, बट उसके साथ हम ये भी बोल सकते हैं उसका इम्पोर्टेंस तो अभी भी कम नहीं हुआ। अभी भी लेटर राइटिंग तब भी इम्पोर्टेंट था और अब भी उसका इम्पोर्टेंस उतना ही देखा जाता है। इन शॉर्ट वी कैन से दैट मॉडर्न कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कितना भी डेवलप हो जाए, बट कहीं ना कहीं लेटर राइटिंग ने अपना इम्पोर्टेंस आज भी नहीं खोया है। आज भी लेटर राइटिंग को बहुत ही प्रिजर्व किया जाता है क्योंकि उस पर भरोसा ज़्यादा किया जाता है, एज इट इज़ एन रिटर्न form. So now we are moving to see the history of letter writing. So I am going to read it out, listen it out carefully. The history of letter writing is quite ancient. In olden days, pigeons were used for communications. Kings and emperors used to send messenger to send secret and confidential information. Messages were written on leaves of the tree, pieces of cloth and thereafter on the pieces of paper. So अगर हम बात करते हैं लेटर राइटिंग की हिस्ट्री, ऐसा नहीं है लेटर राइटिंग मॉडर्न इक्विपमेंट है, लेटर राइटिंग तो पुराने ज़माने से देखा जा रहा है। सो ओल्ड डे में आपको पता है कबूतर, पिजन यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशन करने के लिए। पिजन के लेग में कुछ लिख के बीट जैसे बांध के फिर उसको फ्लाई कर देते थे और वो जाके कम्युनिकेशन के लिए हेल्प आउट करता था। एज अ ट्रांसपोर्टेशन पिजन को यूज किया जाता था, बट उसके पीछे रिटर्न एक मैसेज पास किया जाता। राजा ले लो, एम्परर्स ले लो, कहीं ना कहीं ये लोगों ने अपना मैसेज जो सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल होता था उसको भेजने के लिए कहीं ना कहीं पिजन के थ्रू ये सारी चीज़ों का कम्युनिकेशन का करस्पॉन्डेंस करते रहे। मैसेज कैसे लिखा जाता था, पहले तो पेपर था नहीं, तो सबसे पहले लीफ में लिखा जाता था, यानी कि जो पत्ते होते थे उसमें लिखा जाता था, जैसे भोजपत्र, ये सारी चीज़ें एसएस में आपने डिटेल में पढ़ा होगा। आफ्टर दैट पीस ऑफ क्लोथ, यानी जो कपड़े का टुकड़ा होता है उसके ऊपर वो लिखा जाता था और उधर से उसको बेचा जाता था। यानी पहले लीफ में लिखा जाता था, फिर क्लोथ में लिखा जाता था, उसके बाद जो है जैसे पेपर आया फिर पेपर में लिख के भेजने का शुरू
हुआ। ये तो बात हुई राजा महाराजाओं की टाइम की। सो नाउ लेट अस सी द ब्रिटिश रूल के टाइम पे क्या क्या चीजें देखी गई। सो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वेल प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म्स वर गिवन टू कम्युनिकेशन एंड लेटर राइटिंग. Post and telegram department was started. As a result, the scope of letter writing expanded. Thereafter, Indian government gifted two important services to the people. They are telephone and telegram. They were considered as modern mean in those days. Letter writing was given much importance. Postcard, inland letter, envelope, etc. Hence, the most economical and simple way of letter writing got much popularity among पीपल. सो यहाँ पे पहले तो एज आई सेड के कबूतरें यूज करके ट्रांसपोर्टेशन किया जाता था. इवन ह्यूमन बीइंग को जो है एज एन कम्युनिकेशन पर्सन एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करके मैसेजेस भेजा जाता था. बट जैसे ब्रिटिश रूल आया उस टाइम पे इंडिया के अंदर कुछ चीजें वेल प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से देखा गया. उसमें कम्युनिकेशन और लेटर राइटिंग को भी एक इम्पोर्टेंस दिया गया, जिससे ब्रिटिशर्स ने पोस्ट और टेलीग्राफ का डिपार्टमेंट स्टार्ट किया. एज ए रिजल्ट क्या हुआ, लोगों ने लेटर राइटिंग का स्कोप को एक्सपांड होते हुए देखा. जहाँ छोटी छोटी टुकड़ों में और कपड़ों में लिख के भेजना था, वहीं पे लेटर लिखना, बड़े बड़े लेटर्स लिखना शुरू हो गया. उसके बाद इवन इंडियन गवर्नमेंट ने दो बड़ा गिफ्ट लोगों को दिया. एक था टेलीफोन और दूसरा था टेलीग्राम. सो ये तरीके मॉडर्न मीन, यानी उस टाइम पे ये मॉडर्न तरीका माना जाता था. लेटर राइटिंग तो अभी इतना इम्पोर्टेंटली देखा था. फोन और टेलीग्राम आने के बावजूद भी जो है लेटर राइटिंग को इम्पोर्टेंस दिया जाता था. बर्थडे में पोस्ट कार्ड भेजना, किसी की डेथ में पोस्ट कार्ड भेजना, इनलैंड लेटर, किसी की खबर पूछने के लिए बड़ा सा लेटर लिख के भेजना इनलैंड में, एनवेलप भेजना, किसी के लिए कुरियर जैसे कोई चीज़ को भेजना. तो इस तरीके से ये बहुत ही इकोनॉमिकल यानी सस्ता, जो अफोर्डेबल था सबसे. नेक्स्ट, सिंपल मीन ऑफ लेटर राइटिंग, यानी बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, हम जो लैंग्वेज में उसी लैंग्वेज में उनको लिख के भेज सकते थे. ये पोर्शन देखा गया था, इसलिए लोगों के बीच इसका पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा देखा गया था. सो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट पोर्शन. Indian Post and Telegram Department started speed post services to make the service speeder. Due to the business, educational and social letter writing, the number of letter increased day by day, and as a result, the new form of distributing letter, popularly known as Angadiya and courier, private services of delivering letters got introduced. With the introductions internet, the most modern services of the letter writing called email came into existence. So इंडियन का पोस्ट और टेलीग्राम डिपार्टमेंट भी स्टार्ट किया गया, जिसमें स्पीड पोस्ट सर्विस शुरू किया गया. यू नो दैट लेटर जब पहले टाइम पे भेजे जाते थे तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन 8 दिन लग जाते थे. फिर स्पीड पोस्ट आ जो 2 या 3 दिन में, फिर अभी तो और स्पीड पोस्ट आ गया, एक ही दिन में पहुंच जाता है. तो स्पीड पोस्ट का सर्विसेज भी इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट के थ्रू स्टार्टअप किया गया था. ड्यू टू बिजनेस एजुकेशनल एंड सोशल लेटर राइटिंग की वजह से नंबर ऑफ लेटर्स जो है दिन बर दिन बढ़ते गए. एज ए रिजल्ट क्या हुआ, नए फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग लेटर्स देखा गया. व्हाट वाज द नया फॉर्म, द न्यू फॉर्म दैट वाज आंगड़िया एंड कोरियर. सो कोरियर किया गया, आंगड़िया यानी पार्सल्स भेजा गया. सो इस तरीके से बहुत सारे पोर्शंस ऑफ लेटर राइटिंग डेवलप होता हुआ नजर आया. इवन पहले सिर्फ इंडियन पोस्टल था, फिर प्राइवेट सर्विसेज भी शुरू किया गया. आपको पता है अभी प्राइवेट कोरियर डिपार्टमेंट्स कितने हैं, ठीक है. तो प्राइवेट डिपार्टमेंट्स भी शुरू किए गए और इंट्रोड्यूस किया गया. बट जैसे जैसे ये चीज़ें चलती रही, उसके साथ साथ इंटरनेट ने भी मार्केट में कदम रखा. वी कैन से दैट ना. सो इंटरनेट को भी इंट्रोड्यूस किया गया. जैसे इंटरनेट इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बाद जो हम लेटर राइटिंग पोस्ट ऑफिस में जाके लेटर लेते थे, फिर लिखते थे, फिर उसको भेजते थे, वो जो प्रोसीजर था वो प्रोसीजर वैनिश हो गया. लेटर राइटिंग का नया एक प्रोसीजर देखा गया जिसे हम ईमेल बोलते. घर ही बैठे बैठे एक कंप्यूटर में डायरेक्ट टाइप किया और डायरेक्ट भेज दिया. पेपरलेस वर्क जो है देखा गया. सो इस तरीके से इंटरनेट से मॉडर्न सर्विस ऑफ लेटर राइटिंग ईमेल के नज़र से देखा गया. सो हियर वी आर कंप्लीटिंग अप द हिस्ट्री. So now let us move on with the characteristic of letter writing. Letter writing has still retained its importance in the modern age of communication. Its characteristic plays a vital role in retaining of its importance. The characteristic of letter writing have placed
letters at a very high place as a mean of correspondence in communication sector. Letter writing has become an important element in business sector. Following points may be enumerated as characteristic of letter writing. तुम्हें पता है लेटर राइटिंग ने अपना इम्पोर्टेंस अभी भी नहीं खोया है. कहीं ना कहीं लेटर राइटिंग की जगह ईमेल राइटिंग आया. ईमेल राइटिंग इज ऑल्सो अ राइटिंग लेटर ओनली. तो आज लोग ज़्यादातर ईमेल राइटिंग में ही डिपेंडेड है और उसी पे ज़्यादा भरोसा किया जाता है. इस तरीके से कहीं ना कहीं लेटर राइटिंग ने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है आज भी प्ले करता आ रहा है. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेटर राइटिंग की अगर हम बात करते, कैसे लेटर्स को प्लेस किया जाना चाहिए, किस तरीके का करस्पॉन्डेंस किया जाना चाहिए कम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर, उसमें लेटर राइटिंग ने बहुत सारी चीज़ें बताई है. लेटर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट आजकल बिजनेस सेक्टर में देखा जाता है. फॉलोइंग पॉइंट्स को हम बोल सकते हैं एनुमरेट यानी एलोबरेट बता सकते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक है लेटर राइटिंग की. So what are the characteristics here? 10 characteristics are given up. Let us see that in a very detailed manner. It is a simple and reasonable method of communication. नो दैट लेटर राइटिंग बहुत ही सिंपल एंड रीजनेबल मेथड माना जाता है. क्यों? अगर आपको लिखना पढ़ना आता है तो आप सिंपली उसको इजी लैंग्वेज में लिख सकते हैं. फिर रीजनेबल मेथड यानी अभी तो ईमेल के थ्रू भेजा जाता था, पहले पोस्ट ऑफिस जाके डाल दो. तो मेथड ऑफ कम्युनिकेशन जो एकदम रीजनेबल तरीके से अपना सारी बातें सामने वाले को बता सके डिटेल में, उस तरीके का एक पोर्शन माना जाता है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट and useful for the writer and the receiver of the letter. even ये important और useful होता है जो लिखता है उसके लिए भी और जो रिसीव करता है उसके लिए भी. क्यों लिखता है? उसको उसका कम्युनिकेशन स्किल पता चलता है. जो रिसीव करता है उसको कोई नॉलेज जो राइटर ने उसको पास किया वो मिलता है. इट हैज़ नो बाउंड्रीज ऑफ प्लेस एंड टाइम. तो उसका कोई प्लेस एंड टाइम का बाउंड्रीज नहीं होता. यू नो दैट आजकल जो इंटरनेट के थ्रू हम देखते हैं कोई टाइम नहीं होता, कोई प्लेस नहीं होता, कहीं पे भी बैठे हम लेटर लिख के पोस्ट कर सकते हैं. इवन हम अगर पुराने टाइम इंडियन पोस्ट की बात करते हैं पुराने टाइम के हिसाब से, वो भी हर जगह पोस्ट ऑफिस है तो कहीं पे भी बैठे कभी भी कोई भी टाइम पे हम पोस्ट कर सकते हैं. सो इट इज़ रिकग्नाइज्ड एज द एविडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम विच लेटर इज रिटन. इवन इसको एक एविडेंस इंफॉर्मेशन जो एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को दिया उसका एक एविडेंस के रूप में भी रिकग्नाइज किया जा सकता है. क्यों? क्योंकि लेटर एक रिटन फॉर्म में देखा जाता है. इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ ए लेटर कैन बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल. अब जो भी लेटर किसी को लिखते हो अगर वो कॉन्फिडेंशियल रखना चाहे तो उसको वो कॉन्फिडेंशियल रख सकता है, जबकि ओरल में ऐसा नहीं हो सकता है. ओरल में जब आप बोलो तो कोई भी सुन सकता है, बट लेटर राइटिंग में चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रह सकता है. इफ रिक्वायर्ड इन फ्यूचर द कंसर्न इंफॉर्मेशन कैन बी रीयूज. अगर फ्यूचर में ज़रूरत पड़ी तो वही सेम इंफॉर्मेशन को हम रीड कर सकते हैं या रीयूज भी कर सकते हैं. लेटर्स आर इजीली सेंड एंड रिसीव्ड. आजकल लेटर्स बहुत ही इजीली भेजा और रिसीव भी किया जाता है. इट इज़ अ लिंक बिटवीन राइटर ऑफ द लेटर एंड इट्स रिसीवर. तो अब एक लिंक हो गया, जैसे हम किसी को लेटर भेजते हैं तो वो हमें वापस उसका रिप्लाई देगा फिर. तो इस तरीके का एक कनेक्टिविटी लिखने वाला और रिसीव करने के वाले के बीच में देखा जाता है. द राइटर ऑफ लेटर एस्टेब्लिश एन इमेज ऑफ द फर्म और इंस्टीट्यूशन. जो भी पर्सन लेटर लिखता है एक इंस्टीट्यूशन या फर्म के बिहाफ में, वो उस फर्म का इमेज को रिप्रेजेंट करने की कोशिश हमेशा करता है और एक अच्छा सा इमेज एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है. और इवन वो कोशिश कहीं ना कहीं लेटर राइटिंग में दिखता है और वो एस्टेब्लिश भी होता है. लेटर राइटिंग एज इट्स साइलेंस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंसर्न्ड फर्म. लेटर अगर हम देखें लेटर राइटिंग कैसे वर्क करता है तो वो एक साइलेंट रिप्रेजेंटेटिव का काम करता है. जैसे कहीं लेटर हमने बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्थित तरीके से लिखा और किसी को भेजा कोई बिजनेस फर्म के बिहाफ से, अगर वो पढ़ेगा तो वो लेटर पढ़ने के बाद वो लेटर से आवाज़ नहीं आने वाली, बट साइलेंटली जैसे वो पढ़ेगा तो वो पढ़ने के बाद उस पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में वो कुछ अच्छा सोचेगा अगर लेटर हमने अच्छा लिखा. तो इस तरीके से एक साइलेंट रिप्रेजेंटेटिव का काम करता है. सो नेक्स्ट इट इज़ टाइप्स ऑफ लेटर राइटिंग. सो टाइप्स ऑफ लेटर राइटिंग की अगर हम बात करें तो उसमें फॉर्मल एंड इनफॉर्मल होता है. फॉर्मल के अंदर ऑफिशियल
एंड बिजनेस होता है। ये तो जस्ट एक नॉलेज था, हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो आज का वीडियो यहाँ तक रहेगा। आई होप you all have understood the portion in a very well manner. So now let us move on with a short revision of the portion that we have seen today. Students, I hope that you all have understood the today's portion in a very well manner. So today we have seen about the introduction, history of the letter writing and the characteristic of the letter writing in a very detailed manner. So in introduction we have seen that for an effective lifestyle, even for the effective portion of development of human being, continuous communication has been seen up, and nowadays modern communication and means of communication has been seen up. Effective communications needs a good knowledge, and after having that good knowledge you must need a mean of communication and methods of communication in a very well way. So if you are seeing nowadays the portion of the communications methods and means are getting developed, by which we can say that the boundaries of the time and the place has been vanished. People can easily communicate with each other within the seconds, and they can get the instant feedback, by which the communication has been seen up in a very effective manner. Even we can see that after a huge portion, the development of the communication and the internet and many more things has been helped up in our human life and our social and economical things in a very better manner. So in that manner, if you are seeing, the oldest form of the communication was considered as the letter writing. Even today also the letter writing is having its importance, but how the importance has been changed up, how the modern letter writing has been came up, what are the portion of the letter writing that is effective in the business. Even still today the larger people believe on the letter writing more. Why? That all things we are going to see up in the today's portion. In that manner we have seen the introduction. After that we have seen the history of letter writing. If you are seeing from the oldest time, in the ancient time, the king and the emperor were having pigeons and they were using it for the communication. In that portion they were writing the letter, a short letter and short sheet they used to tie on the pigeon's leg, and they used to send the message to the other person, concerned person. For on that portion, on that earlier days, people used to write the letter on the leaf. After that they wrote on the cloth, and then they started to write on the paper. And in the during the British Raj, it can be said that at the time of the British Raj, the people were being seen well planned, and communication has been we can say that considered in a very better manner. At that time the postal and the telegram departments were being established, and at that time the letter writing took a wide scope, and slowly the form of the letter writing become very famous and popular among the people. We can say that among the people. Why? Because it can be said that among the people it become wider, because it was very simple and very economical for the people, and in this manner the letter writing become popular. And slowly after the British Raj, the Indian postal department was been established, and the day-to-day writing of the letter has been increased as the educational, social, individual, every people started to write the letter communication and started to do the communication through the letter. Even after that the Indian postals had been seen up by a private sector, which means the courier and angadiyas. And slowly the India also established the telephone and telegram, but still after established such things also, the importance of the letter has not been decreased. And soon the internet arrived. As the internet arrived, the letter writing took a new modern way of writing, that is considered as email writing. So it can be said that still the letter writing is having the importance in the day-to-day life of the human being, and most probably businessmen's reliance on the letter writing so much. So after that we can say that we have seen the characteristic. In the characteristic we have seen that as the day-to-day mean and methods of the communications has been seen up developed, but still the letter writing is playing a vital role, because still the businessman and the people rely on the letter writing. And even the new modern email writing is been considered as the most used tool in the nowadays generation. So it can be said this is a good way of communication, but still the letter writing has its own characteristic that can be
followed up, and even we can say that enumerate that these are the characteristic of a letter writing. So first of all, it is very simple and reasonable. So in the manner of communication, it is simple and reasonable. Even the giver and the taker, means the sender and the receiver, both are getting a link between each other by the letter writing. Even the letter writing gives an information. That information can be helpful to the receiver, but that can be kept in a very secret, confidential manner if the receiver wishes. Rather than that, if you are seeing, it is a very simple source of sending and receiving has become very easy. In this manner, we have seen 10 points of the characteristic of the letter writing. So I hope that you all have understood the portion in a very well manner. Rather than that, I hope that this video was an interesting video for you all. Until the next interesting video is not coming, I hope you all will be fit, fine and safe at home. Until that, Jai Hind and Jai Bharat to everyone.